to give me an opportunity on this platform and to conduct a session for career guidance. So without wasting much time, let us move ahead with our session. Yes, this is what you people are. यानी आप जो भी बच्चे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये जो भी सेशन देख रहे हैं, जो स्लाइड आपके फ्रंट, that is the slide which you are having in front of you. This is what you are. Now, what exactly it means? यानी at time, अभी ये present time में आपके पास काफी सारी information है. Now, how and what is the source of this information? Like for example, you people are easily accessible to Google's. आपको Google से information मिलती है. You can have access to YouTube channels. Like for example, certain channels which are educational based, जैसे Byju's tools apps है, where you can have a clear concept, I mean to say guidance, as well as you can take more and more amount of information. पर problem क्या हो रही है, जितनी information आपको मिल रही है, you are tend to get confused more and more when it comes to selection of your career, that is career choice. और अभी हम ये जो state आप देख रहे हो with the help of your PPT, this tells you that आपका जो state of mind है वो imbalance है. Now the reason of this imbalance is आपके पास information तो बहुत सारी है which is unfiltered. Unfiltered यानी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि information correct है, source correct है, authenticated है, और you are not able to understand कि exactly करे क्या. And the reason is that you are confused because a lot of things are there in your mind, a lot of questions you have in your mind. So this is what your state of mind is right now, imbalance. So to balance this state of mind, we are here today for this webinar. So henceforth, आपको याद रखना है कि you have to avoid this mistake. So what is the mistake? Mistake is that many of you, अभी आप में जो audiences बैठे हैं, with those who are listening the webinar, आप standard 9 से लेके standard 12 तक के students हो. So what you do is that when it comes to your career choices, like for example, जो 10th वाले students हैं, वो सोचते होंगे कि अभी 11th में उन्हें कौन सी stream लेनी है, या जो 12th वाले students हैं, वो सोचते होंगे exactly आगे क्या करना है. But when you take, सोचना बुरी बात नहीं है, it is, और सोचना होना चाहिए, that is very important. But what we do is that हम अभी जिस stage में सोचते हैं ना, the stage is current. I mean to say, you look at right now. I mean to say, जो भी अभी market में चल रहा है, you based on that you take a decision. Okay, that is again not wrong. That is very correct. Okay, but the problem is that आपको उसके साथ और एक बात याद रखनी पड़ेगी कि the coming future, 5 years down the line, 10 years down the line, वो field जो आपने select की है is on that active. यानी आपको ये सबसे पहले decision लेना पड़ेगा. It means that आपको futuristic रहना पड़ेगा. Futuristic, it means जब भी आप career choice करते हो या career decision लेते हो, you can't just think of 1 year or 2 years. आपको लंबी सोच करनी है. That is for at least for 20 years or 25 years. आपको इतना see उसमें upgradation होते रहेगा. You have to have lot of things doing in that. But then हमें ऐसे popular choices लेने हैं जो हमें 20 years तक survival के लिए help करे, which will help you to sustain. So very clear, when you are giving your 10th and 12th standard, आप जब career choice कर रहे हो, make sure कि आप futuristic career choice कर रहे हो. Okay, so now what is this? This is what you have right now. Okay, आपके पास education है, you are studying, almost everyone has cleared your primary education, that is a birthright of every child as our education policy, and knowledge है. Now when I'm saying knowledge, it means that you are not completely 100% knowledgeable. आपकी ये जो knowledge है वो slowly बढ़ती जाएगी. Like for example, आप अभी अगर 10th standard के student हो तो आपकी knowledge capacity जितने आपने subjects पढ़े हैं, आपने थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ update किया होगा, so that is your knowledge capacity, which will keep on increasing the moment you go ahead. लेकिन आपका education or knowledge will give you, and of course you need to have some action out of that. Please try to understand, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, we are doing it with an aim. So action का मतलब क्या होता है? That is your aim. That's what you want to do, and that's how it comes in the form of what action. But action होना कैसे चाहिए? Now your action should be in the form of success, and every one of us is waiting for that. I mean to say, आज अगर आप लोग ये वेबिनार अटेंड करने बैठे हैं, so obviously आपने कुछ सोचा होगा
ना वो सोच आपको आई मीन टू से दैट थिंकिंग विच यू हैव इन योर माइंड, या जो सोच आप सोच रहे हो उसका आउटकम एक ही है कि आपको सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस का रिलेशन रिवॉर्ड से होता है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि यस, लाइक फॉर एग्जांपल आप 10th स्टैंडर्ड में हो या आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आप क्यों कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, सो योर अल्टीमेट आंसर विल बी फॉर द क्वेश्चन इज मैम हमें आगे चल के अपने पैरों पे खड़ा होना है, वी वांट टू डू जॉब, वी वांट टू बी प्रोफेशनल इन आवर करियर्स। इट मींस आप रिवॉर्ड के बारे में सोच रहे हो। सो सक्सेस, जब भी आप सक्सेस के बारे में सोचते हो, there is something which is complementary and that is reward. Now if I am defining, अगर आप सबसे पहले ये तो अंडरस्टैंड कर लो क्लियरली कि सक्सेस होता क्या है। सी हम जब भी सक्सेस के बारे में सोचते हैं ना, एक डिफरेंट पिक्चर आपके आंखों के सामने आता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे करण जौहर के मूवीज है, एक फॉरेन लोकेशन में मूवी शूट किया जा रहा है एंड BMW कार, और लाइक फॉर एग्जांपल लग्जरियस हॉलिडे जिसमें सब कुछ है। इज इट दैट सक्सेस फॉर अस? बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है हमारे सामने, but no, that is not a success, that is not a definition of success for us. For us the definition of success is जो भी आप लोगों ने सोचा है और जो भी आप अचीव करोगे, that is success. Like for example, अगर अभी भी आप क्लियर नहीं हो, आपने 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स दिए हैं एंड यू हैव स्टडीड वेरी हार्ड, और आपको पता है कि आपको 90% आने वाले हैं, ओके 90 to 95 के बीच आपने टारगेट रखा है। डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स है जिन्होंने 70-75 के बीच टारगेट रखा है। सो फॉर देम इफ दे आर गेटिंग 75%, इट मींस उनके लिए वो सक्सेस है। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि आजकल के जनरेशन में यानी आप लोगों में सक्सेस की डेफिनेशन कुछ अलग है। Carrying an iPhone for you is, you know, is a success. That is not a success. वो iPhone जो आपके हाथ में है, that is not a success because आपने उस iPhone के लिए कुछ नहीं किया है, rather than blackmailing your parents. Okay? लेकिन अगर आप अपने बलबूते पे कुछ अचीव करते हो, that is success. So please try to understand the difference between success. Success is that जो हम खुद करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं, and which we really achieve. And that is success. और वो success किससे related है? That is related with your reward. If you have appeared for standard 12 and if you are securing 80% of marks, that 80% of marks is your success, but that success is with your reward. यानी जो 80% आपको मिले हैं वो आपका reward है. So please remember ये दो correlation. Now आप में से कई बच्चे होंगे, उनके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, मैम सक्सेस के साथ हमेशा रिवॉर्ड आता है? यस, द आंसर इज आता है, बट इट इज अ पार्ट दैट ये सक्सेस की जर्नी है ना, वो दो चीजों से एसोसिएटेड है। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। यानी जब पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपने एक प्लानिंग किया, आपने लाइक फॉर एग्जांपल एक सक्सेस के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, यू गॉट द सक्सेस, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। लेकिन शायद आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ थोड़ा से प्रॉब्लम आ गए, सिचुएशन खराब हो गई, लाइक फॉर एग्जांपल सी राइट नाउ हम लॉकडाउन में है, सो दिस इज यू नो बट हमने जो सोचा था वो सब थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, सो इसका मतलब ये नेगेटिव है, बट टाइम भी आफ्टर सम टाइम यू आर गोइंग टू गेट इट। यानी सक्सेस के साथ फेलियर्स का होना जरूरी है, और इनफैक्ट आपको ऐसे सोचना चाहिए, जब तक फेलियर नहीं आएगा आप सक्सेस के करीब नहीं जाओगे। So success and failure is a part and phase of life, but दोनों में एक तो गारंटी है, there will be a reward. The only thing is that आपको जो एरो दिखा है towards a reward, आपको वो पाथ चलना पड़ेगा। Only thing is that किसके लिए वो पाथ मे बी आफ्टर 5 years आ जाए, किसके लिए 6 years आ जाए, किसके लिए 7 years आ जाए, तो थोड़ा सा there is you know there is little bit race in reaching that reward, but then everyone, अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो तो रिवॉर्ड आपको मिलना ही मिलना है। ओके, so now let us start with exactly the tips. हमारे वेबिनार का नाम था preparation tips of career guidance. Now what are these tips? These tips are nothing but you know strategies. यानी आपको क्या करना है एग्जैक्टली अगर आपको आप सोच रहे हो कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, तो उस डॉक्टर बनने के प्रोसेस में आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा। नाउ लाइक फॉर एग्जांपल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9, आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप 10th के स्टूडेंट हो, आप 11th के स्टूडेंट हो, आप 12th के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये प्रोसेस सेम है।
द ओनली थिंग इज दैट मे बी 10th और 12th के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिडिफाइन करना पड़ेगा, मे बी आपने कुछ सोचा है बट आपको उसे सिर्फ अलाइन करना पड़ेगा क्लियरली, एंड स्टूडेंट ऑफ 9th आर लकी इनफ कि आपको अभी पता चला है, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंग द थिंग्स इन सच वे. सो व्हाट इज दिस प्लानिंग? अभी प्लानिंग तो एक आई मीन टू से एक मैनेजमेंट स्कॉलर है हेनरी फियोल, उन्होंने इसके बारे में खोज की थी, उन्होंने ये वर्ड ढूंढ निकाला था और उन्होंने कहा था कि हम लाइफ में किसी भी फेज में, लाइक फॉर एग्जांपल हम हमारे पढ़ाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी someone speaker is on, please keep it on mute. ओके, तो हम अगर हाँ, उन्होंने वो मैनेजमेंट स्कॉलर है थे सॉरी, उन्होंने प्लानिंग के बारे में बताया था ना. अभी ये होता क्या है प्लानिंग? लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ चाहिए. ओके, आई रिक्वेस्ट किसी का मिस्टर रविंद्र, आपका स्पीकर ऑन है, प्लीज कैन यू जस्ट म्यूट योर स्पीकर. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्लानिंग, लाइक फॉर आपने सोचा होगा कि लॉकडाउन के बाद दिस इज द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू, दिस इज, इसका मतलब है आपने प्लानिंग किया है. लेकिन ये जो प्लानिंग हम बात कर रहे हैं वो इट इज रिलेटेड टू योर करियर, वो जनरल प्लानिंग नहीं है. तो अगर आप प्लानिंग करते हो, आपके प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला बॉक्स है प्लानिंग के ऊपर वाला, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी. अगर मैं इसको एक एग्जांपल दूं उसके लिए, आपको बनना है पायलट. ओके, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन एविएशन इंडस्ट्री, गोइंग इन एविएशन इंडस्ट्री एंड यू वांट टू बिकम अ पायलट. ठीक है, ये आपकी इंटरेस्ट एरिया है. अभी एबिलिटी क्या होती है? लेकिन आप यू आर अ हाइट फोबिक पर्सन, यानी आपको हाइट फोबिया है. व्हाट इज दिस हाइट फोबिया? यानी आपको हाइट से डर लगता है, आप देख नहीं सकते, अगर आप हाइट पे जाते हो यू कांट सी डाउन, यानी आपको डर लगता है. एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज you don't have that ability. लेकिन अगर आप सोच रहे हो प्रोफेशन बनना है पायलट और आपकी एबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको बनना है डॉक्टर, लेकिन आप जब खून देखते हो तब आप फेंट हो जाते हो. इसका मतलब है आपके पास इंटरेस्ट है लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है. So you have to select that type of profession where you have an ability. Now आप सोचोगे मैम माइंड में कि मैम एबिलिटी और इंटरेस्ट का रेशियो परसेंटेज कैसे होता है? सी, इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल होता है, पैशन जिसे हम बोलते हैं. So what is that? आपकी एबिलिटी अगर थोड़ी कम है, इंटरेस्ट है तो चलेगा, बट द ओनली थिंग इज दैट आपके पास इंटरेस्ट के साथ एबिलिटी होनी चाहिए. आप बोलोगे मैम मेरे पास पैशन 100% है पर एबिलिटी नहीं है, तो मुश्किल होगी. सो इट इज डिफिकल्ट. सी, इम्पॉसिबल नहीं है, बट आपको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो डर निकालना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. और अगर सपोज आपने इस like for example आपको आर्मी में जाना है, you want to become patriotic and you want to help the country. okay, अगर आपने कभी देखा होगा या सुना होगा एटलीस्ट इस मूवीज में कि आर्मी की ट्रेनिंग बहुत टफेस्ट ट्रेनिंग होती है, लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दैट ट्रेनिंग. और आप अगर पहले ही दिन या दूसरे ही दिन हार जाते हो, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. आपकी एबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट तो बहुत है आपके पास, 100% वाला इंटरेस्ट है, लेकिन एबिलिटी नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो प्लीज सिलेक्ट और प्लान सच प्रोफेशंस जिसमें आपकी इंटरेस्ट एरिया भी हो, पैशन हो, बट एबिलिटी भी हो. परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट देन अगर आप सोच रहे हो तो इंटरेस्ट वाला परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए. ओके, दैट इज पैशन. देन कम्स ऑल्टरनेट करियर चॉइसेस. अभी ये क्या होता है ऑल्टरनेट करियर चॉइसेस? जैसे आपके पास प्लान ए होता है, आपके पास प्लान बी सी डी होना जरूरी है. आप सोचोगे मैम अभी ये क्या है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. आप में से कोई स्टूडेंट एक कॉमर्स स्टूडेंट है, 12th कॉमर्स. ओके, आपने सोचा है कि आपको बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट. हाँ, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट अगेन इज नॉट एन इजी एग्जाम टू क्रैक, जहां पे रिजल्ट काफी हमें 5 to 6% ही लगता है ओवरऑल. ओके, अभी लाइक फॉर एग्जांपल आपने सोचा है ठीक है चलो ट्राई करते हैं, मैम ने तो बोला है सक्सेस के साथ फेलियर भी होता है, ट्राई टिल यू सक्सीड. पर उसके लिए डेफिनेशन होता है, आप पूरी लाइफ तो ट्राई नहीं कर सकते ना, आप करियर बनाने के पीछे हो. सो यू हैव आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको तो इनकम आना है ना, पैसे तो कमाने हैं. आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 10 बार किया, 20 बार किया, बट देन आपको पता होना चाहिए कुछ गड़बड़ हो रहा है.
इट मीन्स आपका जो करियर चॉइस है उसे आपको थोड़ा रीडिफाइन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अल्टरनेट करियर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। नाउ आई कैन टेल यू, अभी आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो जो सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत मेहनत करने के बाद अभी क्रैक नहीं कर पा रहे हो, आई कैन टेल यू नाउ बिकम डॉक्टर। प्लान ए का सीए है, प्लान बी का डॉक्टर रखो, बिकॉज बहुत डिफरेंस है दोनों करियर चॉइसेस में। तो प्लान बी क्या होना चाहिए? प्लान बी हो सकता है आप एक सीए में एग्जाम दे सकते हो, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप सीपीए के लिए ट्राई कर सकते हो, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आप आईसीडब्ल्यूए के लिए ट्राई कर सकते हो, बिकॉज दीज आर ऑल द फैमिलीज, यानी एक ही फैमिली से रिलेटेड है। तो थोड़ा आपको एटलीस्ट सिक्योर होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग एग्जाम्स दे सकते हो, सो दैट यू कैन स्टार्ट विद समथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, आपका इंटरेस्ट एरिया अच्छी है, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, बट है ना बहुत सारे फेलियर्स से ना आप टूट जाते हो, योर मोरल बिकम्स डाउन, आपका मोटिवेशन लेवल। सो उसे बनाने के लिए आपको प्लान बी और प्लान सी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, मैम हम प्लान बी बाद में नहीं कर सकते हैं क्या, हमें साथ में ही क्यों करना है? द रीजन इज दैट अगर आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका प्लान ए खराब हो जाता है या सक्सेसफुल नहीं होता है, आपने ऑलरेडी मे बी 1 या 2 साल आपने प्लान ए के पीछे स्पेंड किए हैं, अभी आप सोचो, आप अगर पूछते हो कि प्लान बी के लिए हम क्यों रुक नहीं सकते हो, सी 2 साल तो आपके ऑलरेडी वेस्ट गए। अगर आप प्लान बी आपके पास है नहीं, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? आपको पहले प्लान बी सोचना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, फिर उसके बारे में यू हैव टू वर्क आउट। इसमें और मे बी 6 महीने खराब हो सकते हैं, एंड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये तो आपने सुना होगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी प्लान रेडी है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता चला जाएगा या 4 दिन चले जाएंगे। सो कौन सा अफोर्डेबल है, 4 दिन या 6 महीने? ऑब्वियसली आंसर होगा 4 दिन। सो दैट्स द रीजन, जब भी आप प्लान ए करते हो, प्लान बी और सी बैकअप प्लान जिसे बोलते हैं, रेडी होना चाहिए। ओके, स्किल्स। अभी इस स्किल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे वाले स्लाइड्स में थोड़ा सा डिटेल में। राइट नाउ स्किल्स का मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, आपकी जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती है करियर बनाने के लिए, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं स्किल्स। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज इफ यू वांट टू बिकम अ न्यूज रीडर, ठीक है, अगर आपको न्यूज रीडर बनना है तो उसके इंटरेस्ट है आपके पास एबिलिटी भी है, बट स्किल्स क्या होनी चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट स्पीकर, you have to be very confident speaking in public, that is public speaking. You should be well versed with the knowledges, like for example अगर आप थोड़ा सा if you are in the state of Maharashtra and you are a non Maharashtrian, तो at least आपको मराठी समझ में आनी चाहिए, that is a skill. You can have a question at any point of time, so you have to work on your skills. इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, रिसर्च विथ योर चॉइसेस जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप जिस भी प्रोफेशन में जाते हो आपको फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, 10 साल के बाद 15 साल के बाद वो प्रोफेशन आपका एक्टिव होना चाहिए, दैट इज यू हैव टू थिंक इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पाथवे का मतलब है एक रोडवे का मतलब है टाइम लिमिट। आपको एक जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम आपने दिया है, तो 10th और 12th में कितने साल का गैप होता है? 2 साल। तो आपका गैप क्या है, दैट इज पाथवे क्या है कि बाबा मेरा 12th 2 साल के बाद कंप्लीट होना चाहिए आफ्टर 10th। ओके, जैसे 12th वाले बच्चे हैं जिस those who are attending this webinar, उनके लिए अभी ग्रेजुएशन अगर करना है तो पाथवे कितना है? 3 years। ओके, यानी पाथवे में टाइम कंसिडर होता है। एंड रिसर्च विद रिक्वायरमेंट। नाउ रिक्वायरमेंट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दो आई हैव रिटन इट एट द एंड या तो लास्ट वाले बॉक्स में, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस लेस होती है। Like for example, if you want to appear for a CA exam or you want to appear for, if you want to go for an engineering, okay, आपको पता है रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसका टाइम लिमिट होता है, एंट्रेंस एग्जाम कब होते हैं, सिलेबस क्या होता है, कैसे क्रैक करना पड़ता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होता है, वो सब होता है रिक्वायरमेंट विच यू शुड बी अवेयर। आप सिर्फ इतना नारा नहीं लगा सकते कि मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है और सब कुछ हो जाता है। उस बनने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हो कि हमने ये वेबिनार आपके लिए अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, बट अभी दिखने के लिए इट्स लाइक इन आई एम स्पीकिंग, पीपीटीज आपके सामने है, ऑल द थिंग्स आर कंट्रोल्ड, लेकिन इसके लिए जो हमने मेहनत की है लास्ट ऑलमोस्ट 20 days,
में, that is our requirement, that was our requirement. हमने काफी सारे like for example day to day messages डालना, आपको email से update करना, telegram group पे update करना, तो ये सब back end पे होता है. But ये हमारे requirements थे, हमने उसे study किया था, and that's the reason how this webinar is successful today. और उसमें सिर्फ like for example मेरा face आपको दिखाई दे रहा है, but back of this there are a lot of people who have really helped and who have really put in their efforts. So ये रिक्वायरमेंट बहुत बहुत जरूरी है. जैसे आप कोई मूवी देखते हो, आपको सिर्फ 3 घंटे की मूवी दिखाई देती है और उसमें एक्टर्स दिखाई देते हैं, बट उस मूवी को बनाने के लिए मे बी सालों लगे होंगे, उस मूवी को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी होगी. जैसे इसरो ने मंगलयान जब लॉन्च किया था, आपने पढ़ा होगा, उसके पीछे 17,000 साइंटिस्ट की मेहनत लगी थी. जस्ट इमेजिन, एक रॉकेट चलाने के लिए वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, बट 17,000 पीपल, इसका मतलब आप सोचो कितनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बड़ी होगी एंड हाउ दैट हेल्प वाज. सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी रेडी. आपको बहुत मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा इफ यू वांट टू हैव दिस परफेक्ट प्लान. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. अगर आपको ये टिप समझ में नहीं आया, आपको लगता है कि मैम आपने जो बोला वो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आई विल मेक इट वेरी सिंपल इन दिस 4 स्टेप्स. अगर आपको करियर चॉइस करना है या करियर अच्छे से डिजाइन करना है, तो सबसे पहले आपको आपका इंटरेस्ट एरिया ढूंढना पड़ेगा. अभी आप बोलोगे मैम नहीं पता ये कैसे करते हैं, तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, दैट इज अवेलेबल इजीली इन द मार्केट. करियर काउंसलर्स है, जो सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स है, उनकी हेल्प से आप ये करियर टेस्ट ले सकते हो, जिसे बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट. और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको आपका इंटरेस्ट एरिया, आई मीन टू से, यू विल कम टू नो योर इंटरेस्ट एरिया. नाउ इसमें और एक प्लस पॉइंट है, आपके इंटरेस्ट एरिया के साथ आपको करियर ऑप्शंस भी मिलेंगे. जो थर्ड पॉइंट है, देखो करियर ऑप्शंस, आपका प्लान ए, प्लान बी जो हमने अभी डिस्कस किया था, आपको ऐसे मे बी 5 बेस्ट करियर ऑप्शंस मिलेंगे. तो अगर आपको ए पसंद नहीं, यू कैन गो विद बी. इफ यू डोंट लाइक बी, यू हैव टू गो विद सी. यू हैव अ चॉइस, यू कैन सेलेक्ट आउट ऑफ दैट. ओके, एंड देन वंस यू नो, अभी आपका सब कुछ हो गया, आपको इंटरेस्ट एरिया पता चला है, आपने करियर चॉइस सिलेक्ट कर लिया है और उसे अंडरस्टैंड करके आपने वर्कआउट किया है. मीन्स जब आप प्लानिंग करते हो, जब स्टार्ट करते हो और एंड तक आते हो, तब तक आपका गोल आपके सामने होता है. नाउ व्हाट इज दिस गोल? गोल यानी आपका लक्ष्य, आपका एम ऑफ योर नॉट लाइफ, एम ऑफ योर करियर. अलग चीजें हैं. हमारे लाइफ का एम बहुत अलग हो सकता है, हमारे करियर का एम अलग हो सकता है, बट देयर इज अगेन कोरिलेशन जो आपको थोड़ा, मींस यू आर वेरी लिटिल बिट स्मॉल टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल वर्ड्स. आप सिर्फ इतना सोच लीजिए, अगर आपने प्लानिंग ठीक से किया, सो यू विल एंड अप विथ व्हाट, यू विल एंड अप सिलेक्टिंग अ करियर चॉइस. यानी आप डिसाइड कर लोगे कि बाबा मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इंजीनियरिंग ऑप्शन था, मेरे पास डॉक्टर का एक ऑप्शन था, मेरे पास बीएससी साइंस ऑप्शन था, मेरे पास बीएससी आईटी ऑप्शन था. अभी चॉइस आपका है, आप चॉइस कर लोगे, इसका मतलब आपका गोल क्लियर है. अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यू हैव सीएस, यू हैव सीए, यू हैव सीएमए, यू हैव सीपीए, यू हैव आईसीएडब्ल्यू. अभी आपने डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है, बट आप डेफिनेटली आप प्लानिंग ठीक से करते हो, तो ये आपका रेडीमेड आपको ये स्टेप बन जाएगा, दैट इज गोल. ओके, योर एम. अभी गोल तो आपके पास आ गया है, तो आपको करना क्या है? द सेकेंड टिप याद रखिए. फर्स्ट टिप था आपका फर्स्ट टिप था प्लानिंग. ओके, जब आप प्लानिंग पूरी अच्छे से कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा गोल, यानी एम ऑफ योर करियर. अभी आपको करना क्या है? ओके, आपको उस फील्ड में आपको खुद को एजुकेशन लेना है. जैसे अभी आपने डिसाइड किया, चलो मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग में आपने डिसाइड किया आपको सिविल इंजीनियरिंग करना है, तो आपका एजुकेशन अभी स्टार्ट हो गया. यू आर इनटू द फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेम ऑफ इंजीनियरिंग. कॉमर्स वाले स्टूडेंट जिसको सीए बनना है, वो बीकॉम में एडमिशन उन्होंने लिया है या बैफ कर रहे हैं, सो दे हैव स्टार्टेड विद देयर एजुकेशन ट्रेनिंग. वो अपना एजुकेशन ले रहे हैं, यानी वो एक्सपीरियंस बन रहे हैं, वो स्किल्स लर्न कर रहे हैं. एज आई सेड, स्किल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में आएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे. अभी स्किल्स मैंने आपको क्या बोला था, द थिंग्स व्हिच यू नीड टू एनहांस योर करियर, उतना आप याद रखिए. एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज कनेक्शन एंड नेटवर्क. अभी ये क्या होता है, कनेक्शन एंड नेटवर्क? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके लाइफ में यू डोंट हैव बिग कनेक्शन. आपके कनेक्शन में कौन कौन आता है? आपके फ्रेंड्स है, ओके,
आपके टीचर्स है, स्कूल टीचर्स है, मे बी आपके वाइस प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स है, आपके कॉलेज टीचर्स है, आपके आई मीन टू से फैकल्टी मेंबर्स जिसे हम बुलाते हैं, ओके, उनसे कनेक्शन रखना क्यों जरूरी है? अ फॉर्मल कनेक्शन ना, व्हाई, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंस? इनफैक्ट ये कनेक्शन सबके साथ होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी। यू नो व्हाट हैपेंस, आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है एंड यू हैव स्टार्टेड योर ओन सीए फर्म, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने सीए फर्म स्टार्ट किया है, ओके, आपके टीचर को थोड़ा लाइक योर टीचर इज लिटिल बिट कंफ्यूज, टीचर ने क्लासेस स्टार्ट किए हैं बट टीचर को फंड्स के बारे में थोड़ा सा डाउट है कि कैसे हैंडल करना है, आपका आईटी रिटर्न कैसे करना है, द टीचर कैन कम टू यू और आपके लिए यू एज एन टीचर आप उनको हेल्प करोगे, बट साइड बाय साइड आपका बिजनेस हो रहा है, आपके पास एक क्लाइंट आ गया है आईटी फाइल रिटर्न करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी ये नेटवर्किंग आपको हेल्प करता है आपके करियर बूस्ट करने में। लाइक फॉर एग्जाम्पल टीचर को कुछ नहीं करना है लेकिन टीचर के पास ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स है जो टीचर आपका कनेक्शन या आपका रेफरेंस दे सकते हैं, यू कैन इम्प्रूव योर कनेक्शन। प्लीज रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट सी कनेक्शन, जब हम बात करते हैं एक इमोशनल कनेक्शन भी आता है, एक प्रोफेशनल कनेक्शन आता है, आपको दोनों मेंटेन करना है। आप इमोशंस को प्रोफेशंस के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते हो, प्रोफेशन को इमोशंस के साथ मिक्स नहीं करते हो। जब बिजनेस की बारी आती है आपको दिमाग से ही सोचना है, यू हैव टू बी बिट सेल्फिश, ओके, आपको बिजनेस भी करना है बट एट द सेम टाइम आपको ह्यूमैनिटी भी साथ में रखनी है, ओके। सो दिस इज हाउ कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइफ में जो भी आपके वे में आता है, आप एटलीस्ट भले उनसे बात मत कीजिए बट उनके कनेक्शन में जरूर जरूर रीजिए, बिकॉज यू हैव टू यू नेवर नो कोई किसका इन्फ्लुएंस आपको किस स्टेज में हेल्प करेगा, ओके। नेक्स्ट कम्स टाइम मैनेजमेंट। ये स्लाइड आने के बाद बहुत सारे लोग या बच्चे, सॉरी, बहुत सारे बच्चे जो ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, यू मस्ट हैव थिंकिंग कि मैम ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, हमने तो ये किया है, जब हम 10th में गए, जब हम 12th में गए, फर्स्ट डे हमें यही सिखाया, इनफैक्ट पूरे साल हमारे फैकल्टीज ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया, टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई करो, आगे बढ़ना है, पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई करो, सुबह उठो, पढ़ाई के लिए बैठो, क्लासेस जाओ। सो वी नो दिस, ओके। अगर आप जानते हो इस टर्म को, इट्स वेल एंड गुड, आई शुड अप्रिशिएट, बट कितने लोग जानते हैं, मानते हैं और करते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट है, ओके। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मे बी हमारे पास, वी आर प्राउड टू से दैट हमारे पास ऑलमोस्ट 200 रजिस्ट्रेशंस आए थे, बट उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो उठे ही नहीं 10 बजे। इनफैक्ट 10 बजे हमारा सेशन था, 9:30 बजे उठे हैं और कैसे भी करके हड़बड़ाड़ी में बैठ गए, बट देन ठीक है बैठ गए, ओके। 10 बजे कुछ बच्चों ने 10 बजे का अलार्म रखा था एंड दे हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, कुछ 10:30 बजे उठे होंगे। It means once an opportunity lost is lost. Opportunity knocks your door once or twice, not again and again. Please keep this in mind. आपको मौका आता है लाइफ में, हर एक के लिए आता है, बट आपको उस दस्तक को you should you should understand. Whenever an opportunity knocks your door, आपको दरवाजा ओपन करना है। अगर आप दरवाजे पे हो ही नहीं अलर्ट, you will never learn anything in your life. You have to remember this very very well. So what is this time management? अभी time management का मतलब है आपको 24/7 पढ़ाई करनी है, not at all. Please remember, आपको लाइफ में, see, life has only one birth. That's what we believe. That's what our I mean to say our studies say. But then उसमें आपको सब कुछ करना है, but at the same time not at the cost of career. तो आपको एक टाइम टेबल, मास्टर शेड्यूल बनाना है. You can see the steps. I have written the steps. आपको एक शेड्यूल बनाना है, but you have to be very 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 strong with your schedule. Now when I'm saying very strong with your schedule, यानी आपको, अगर आपने डिसाइड किया है 10 बजे आपको पढ़ाई के लिए बैठना है, whatever happens, या तो मोदी जी आने वाले हैं या तो फिर there is something going on, but no, you should be very very true to yourself. You have to be away from all the distractions. Now what are these distractions? Like for example, अभी आप बोलोगे हाँ मैम आप तो मोबाइल का ही एग्जाम्पल दोगे. आई एम नॉट गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल बिकॉज आई डोंट थिंक, आई मीन आई ऑल्सो यूज मोबाइल, बट मुझ अब वो मेरे, आई मीन इट इज ऑन मी हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट.
डिस्ट्रैक्शन तो सबके पास होता है, जैसे आपके पास जो सबसे बड़ी चीज है आपका माइंड, वो तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज आपने अगर 10 बजे का टाइम शेड्यूल बना लिया है और 10 बजे आपके फ्रेंड ने बोल दिया है कि हम पबजी खेलेंगे, आर यू इंटरेस्टेड? तो सबसे बड़ा माइंड आपका माइंड से, मोबाइल तो सोर्स है, आपका माइंड ही आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड दैट पबजी गेम। इट मीन्स दैट सबसे पहले आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। वंस यू डू दैट, आपका डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। मोबाइल, टेलीविजन, फ्रेंड्स, ये सब सोर्सेस है। यू कैन टेल कि मोबाइल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का मोड है, यूज करो, बट यू शुड नो हाउ टू यूज योर मोबाइल एट अ लिमिटेड टाइम। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितना टाइम स्पेंड करना है, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। और आप अभी बच्चे नहीं हो, यू आर मच मैच्योर्ड। आजकल हम लीगली बोलते हैं कि 18 के बाद आप एडल्ट हो जाते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी, बच्चा जब सेकेंडरी में आ जाता है, ही इज मच मोर मैच्योर टू अंडरस्टैंड थिंग्स। सो आई डोंट हैव टू एलॉबरेट मोर कि आपको क्या सीखना पड़ेगा। मोबाइल, अगर आप मोबाइल के साथ हो, इफ यू आर हैविंग मोबाइल, just see whatever is needed and whatever is not, just put it aside. That's all you have to do. Okay, set goals for your study session. जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स बना। अभी आप अगर सोचोगे लाइक फॉर एग्जांपल, मैम मुझे डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, दैट इज नॉट अ गोल। यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर एंट्रेंस, दैट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। देन यू हैव टू गो फॉर योर एमबीबीएस स्टडीज, दैट इज a second goal. Then like for example, आपको प्रैक्टिस करनी है, which hospitals you have to practice in, whether you have to practice in government hospitals, private hospitals, आपको खुद की क्लिनिक में प्रैक्टिस करना है या आपको किसी के अंडर प्रैक्टिस करना है। ये छोटे छोटे गोल्स होते हैं आपको पहले, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम है ना फोकस शॉर्ट टर्म गोल्स पे करें। अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करते हैं ना, देन इट बिकम्स इजियर। ओके फाइन। वर्क ऑन टाइम, वर्क ऑन वन थिंग एट अ टाइम। आपने ये प्रोवर्ब सुना होगा, जैक ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन। व्हाट डज दिस मीन्स? आई विल रिपीट वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज अवेक। ओके, ये अलार्म है आपके लिए। सो इफ यू आर नॉट, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, because it should not become monotonous और important point ही आप miss कर दोगे नहीं तो। Okay, so just for a relaxation, just drink or have a sip of water and make sure you are on track. Okay, so we were talking about work on one thing at a time, और मैंने एक proverb बोला था, that is jack of all and master of none. इसका मतलब क्या होता है? आप एकदम इंस्पायर हो गए, लाइक फॉर एग्जांपल आपने वेबिनार देखा, आपको लग रहा है हाँ बस मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैम ने ये बोला है, मैम ने वो बोला है, आपने खुद कुछ डिसाइड किया है। दिस इज नॉट द थिंग्स हैपन। आई मीन टू से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी गाड़ी, लाइक यू आर नॉट अ बुलेट ट्रेन, यू हैव टू स्टार्ट। पहले आपको स्टार्टिंग आना चाहिए, पहले गाड़ी को आपको ट्रैक पे रखना आना चाहिए। ओके, आपको स्टार्ट बटन ऑन करना आना चाहिए। ओके, आपने स्टार्ट बटन ऑन कर दिया एंड आपने एक्सीलेटर फुल पे रखा, एक्सीडेंट होना ही होना है। ओके, एंड आप एंड अप करोगे विदाउट एनीथिंग इन योर हैंड। सो इट्स बेटर दैट वर्क ऑन वन थिंग एट अ टाइम। मैम इसका एग्जाम्पल दो, हमें अभी भी नहीं समझ में आया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्किल्स, लाइक हम स्किल्स के बारे में एज आई सेड आई वांट टू डिस्कस, लेकिन अब लाइक फॉर एग्जांपल आपको बनना है ओरिएटर, आप लाइक आपको लगता है आपके पास वो स्किल्स है दैट यू कैन स्पीक वेल। ओके, तो आपके उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव योर वॉइस मॉड्यूलेशन। कब बताना है, आई मीन टू से कब लाउड पिच में बात करना है, कब पिच को नॉर्मल रखना है, कब पोलाइट रखना है, कब थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना है। This all things comes only with a practice. So आपको थोड़ा like once you do that voice modulation, then you can go with your, then you can go with increasing your knowledge. Okay, and please remember मैंने जो first slide बताई थी, knowledge and education. See, आपके पास education है, आप educated हो, अगर आप साइन करना जानते हो, लिखना पढ़ना जानते हो, तो you are educated. But it doesn't mean कि आपके पास knowledge है। अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस सेशन में ही मैं बताती हूँ कि लास्ट 5 मिनट्स या अभी थोड़ी देर के बाद हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आधे से ज्यादा बच्चे अभी भाग जाएंगे। व्हाट इज दैट? बिकॉज इट इज लाइक आपको आता है बट यू आर डाउटफुल अबाउट योर नॉलेज। अगर आपको ये डर आपके माइंड से निकालना है, आपको अगर नॉलेजेबल बनना है, सो यू हैव टू वर्क ऑन थिंग्स। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एज आई सेड,
आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस को निकालना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, दैट इज शॉर्ट टर्म गोल्स, एंड देन you have to make sure that you are going with one thing at a time and in a shorter break, as I written shorter break. Like for example, मैंडेटरी है, आप अगर सोचते हो कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है, वेल वेरी नाइस, 2 घंटे में आप एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, व्हाट हैपेंस आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, माइंड फ्रेश होके। जैसे मैंने अभी आपको बोला, हम लास्ट हाफ एन आवर से आई एम स्पीकिंग एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, लेकिन आप पैसिव हो गए हो, तो एक थोड़ा सा सिप ऑफ वाटर ले लीजिए, तो अपनी प्लेस पे थोड़े खड़े हो जाइए, जस्ट मूव योर बॉडी, इट्स इनफ फॉर यू टू कम बैक। आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली, आप you become very energetic and you become very active. So this is how you can do. So I hope time management. So time management का मतलब है, आपको पता है, you are very mature kids, और आप बहुत, I mean to say, you are very much obedient. Okay, but the things, सिर्फ ओबीडियंस से काम नहीं चलता है, आपको इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ आपको टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी नाउअडेज। आपने 1 सेकेंड आपका वेस्ट कर दिया, यू हैव लॉस्ट, आई मीन टू से शेयर मार्केट में देखो, 1 सेकेंड से अगर मार्केट अप एंड डाउन हो गया, देयर इज लॉस इन करोड़। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जब आप करियर के बारे में सोच रहे हो। ओके, नाउ यस, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग। हम तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हम स्लाइड्स स्किल्स के बारे में आगे बात करेंगे, ये वो स्लाइड है। ओके, नाउ लाइक फॉर एग्जांपल, बिफोर गोइंग टू दिस स्लाइड, आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। अभी तक लाइक आपको लग रहा है कि मैम ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हमें प्लानिंग तो समझ में आ गई, हमें गोल सेटिंग समझ में आ गया, हमारे लाइफ का एम क्या है, हमें ये तो समझ में आ गया कि चलो बाबा, हमें लाइक फॉर एग्जांपल, वी हैव टू बी ऑन, वी हैव टू वर्क फॉर आवर करियर। ओके, हमें बहुत टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, बट ये स्किल्स का नहीं समझ में आ रहा है। ये स्किल्स कब होते हैं? ये आपके कॉलेजेस में होते हैं, जब आप डिग्री कॉलेज में एंटर करते हो। आप सोचोगे मैम ये सब्जेक्ट है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली बिना सब्जेक्ट के आप ये सीख जाते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फील्ड्स में इंटर्नशिप करके प्रोजेक्ट आता है। जैसे अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, आपको एक प्रैक्टिस सेशन करना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इंटर्नशिप। आप अगर सीए बनते हो, आपको आर्टिकलशिप करने पड़ती है, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप। ओके, आप अगर मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हो, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मार्केट रिसर्च के ऊपर, तो दैट इज नथिंग बट इंटर्नशिप। यानी ये इंटर्नशिप है ना, आपका प्रैक्टिस सेशन होता है जो आपको स्ट्रांगली लर्न करना है ना। हाउ, दैट आई कम टू इट इन 2 मिनट्स। लीडरशिप। अभी लीडरशिप क्या होता है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो कंट्री में है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, काम करना डिफिकल्ट नहीं है, बट लोगों को हैंडल करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज चैलेंज। आई विल नॉट टेल प्रॉब्लम, आई विल टेल इट इज अ चैलेंज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने ये शायद किया भी होगा आपके स्कूल्स में, मॉनिटर करके कंसेप्ट है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हेड गर्ल, हेड बॉय, ऐसे आपने सुना होगा, दैट इज नथिंग बट अ लीडरशिप। नाउ अभी लाइक आप अगर आपको आप पिछले आप लाइक फॉर एग्जाम्पल आप थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए और आपको आपके क्लास के मॉनिटर की याद आ गई और आप मे बी आप हंस पड़े होंगे, शायद उससे क्लास माइंड नहीं होता होगा या आप उसका मजाक उड़ाते होंगे। ये लीडरशिप के टाइप्स है। अभी आपको डिसाइड करना है आपको किस तरीके का लीडर बनना है। ऑब्वियसली हमें ऐसे लीडर बनना है जो हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पीपल हु वांट्स टू पीपल वांट्स टू फॉलो हिम, एंड आप नहीं चाहते हो कि लोग आप पे हंसे। सो डेफिनेटली आपको ये जब ट्रेनिंग लेनी है, दिस हैपेंस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नाउ कैसे होता है, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई आपको आके नहीं बोलेगा भाई लीडर बनो, यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ओके, आपको अगर किसी इवेंट में हेड बनाया जाता है, विलिंगली करो। आप बोलोगे नहीं मैम डर लगता है, कुछ गड़बड़ हो गया तो नथिंग विल हैपन, नथिंग विल गो रॉन्ग, दिस आर ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आप गिरोगे बट आप खुद से खड़े भी हो गए। सो प्लीज रिमेंबर दैट आपको ये सब मौके आने वाले हैं, स्पेशली आप 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो है एंड 12th, आप अपनी डिग्री कॉलेज में ये सब करने वाले हो, बट आपको ये मौके का फायदा उठाना है।
आपको अगर कोई आके बोलता है इवेंट हैंडल करो, डेफिनेटली हंस हंस के उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप अपने आप को लीडरशिप ट्रेनिंग दे रहे हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. सी व्हेन थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली उसकी वैल्यू नहीं होती है, बट वो चीजें आपको बहुत सारी लेसन्स सिखा देते हैं. ओके, सर्विस लर्निंग अभी बिजनेस में एक नया कंसेप्ट आया है, CSR जिसे बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मे बी 12th कॉमर्स के जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं अभी सेशन, उन्हें पता होगा थोड़ा सा ये होता क्या है. यानी अगर आप इस देश में बिजनेस कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सोसाइटी के लिए. वैसे कॉलेजेस में भी होता है, उसे बोलते हैं ISR, इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने सुना होगा कोई कॉलेज NGO के साथ मर्ज अप होके हेल्प करता है, या तो एजुकेशन के लिए या तो पुअर पीपल के लिए, बहुत सारे फील्ड्स है. सो डू दैट, बिकॉज अगर आप ये करते हो ना, आपको पता चलता है लोगों के साथ काम कैसे करना है. देन कम्स योर रिसर्च, जैसे मैंने इंटर्नशिप के लिए बोला था. Now, what I want to tell through this slide is that आपको ये सब होगा, आपने अभी तक ये नहीं किया है. कोई भी स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में ये बड़े लेवल पे नहीं होता है, बट डिग्री कॉलेजेस में ये बहुत बड़े लेवल पे होता है. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको इसकी अपॉर्चुनिटी, अभी आपको पता तो चला है ये आने वाला है. ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी. ओके, एंड देन कम्स द लास्ट. Okay, see, I'll repeat once again. I hope everyone is awake. So once again, I am saying good morning, ताकि आपके आँख and your eyes as well as ears are open, and you should not miss what has been told. So we started with planning. आपको interest area पता करना है, and you have to work. Then आपके पास आपका aim है, life का goal. Then it is about your, you know, that is time management. चीजें time पे होनी चाहिए. Then it is about your communication skills. That's what is there in, skills, which we have learned earlier slide. And this is what the last tip I can say ideally is communication skills. Now मैंने वहां पे 4 circles में कुछ लिखा है. सबसे पहले circles में लिखा है skills. Now skills का मतलब क्या है? People are willing to hear you. लोग आपको सुनना चाहते हैं, but आप के पास वो कैपेसिटी है उनसे बात करने की, और लाइक फॉर एग्जांपल उनको कुछ बताने की. जैसे मैंने बोला, बहुत से बच्चे डर जाते हैं. द रीजन इज दैट आप ग्रेजुएशन के बाद बहुत अच्छे मार्क्स से आ गए हो, यू हैव हैविंग O grade, but you're not confident in communication skills. So whenever you speak, people will get confused, और अगर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपको सुनना बंद कर देते हैं, और इम्पैक्ट होता है आपके, somewhere it will be impacted on your career. Like for example, आप एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, आप एक प्रोडक्ट बेचने गए हो, आपको खुद को ही प्रेजेंट नहीं करने आ रहा है. See, when I'm saying present का मतलब है पर्सनालिटी नहीं, आपका कम्युनिकेशन, आप में कितनी कन्विंसिंग पावर है, आप उनको कैसे उनका माइंड डाइवर्ट करते हो. ओके, आप उनको कैसे कन्विंस करते हो प्रोडक्ट लेने के लिए. इसके लिए लोगों को आपको सुनना तो चाहिए, but it means सुनते सुनते they should well understand you. They should make sure that whatever you're telling is worth. Even आपको पता है वो प्रोडक्ट में इतनी कुछ खास बात नहीं है, बट आप जिस तरह से वो प्रोजेक्ट करते हो, customer or a client will end up taking the project. And if he ends up taking a project, it means it is building your career. आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं. ओके, आप बोलोगे सिर्फ मार्केटिंग फील्ड में ये कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है? ये सब जगह. यू आर अ डॉक्टर, ओके, अभी आप डॉक्टर हो, लेकिन आपको पेशेंट्स को, if you are just checking the patient and you are just giving the medicine and the patient is gone. लेकिन बहुत बार मेडिसिन से ज्यादा आपके वर्ड्स उनकी बीमारी जल्दी दूर करता है. मे बी लाइक द पेशेंट इज अ कैंसर पेशेंट, और उसे पता है वो मरने वाला है, बट द वे यू मोटिवेट हिम, उसे उसकी जो विलिंगनेस है ना, जो मोरल है ना, शायद वो उससे और 2 साल तक जिंदा रखे. So that is what, willingness. If you have seen Munna by MBBS, I mean to say, I don't have to describe anything. It's not about, keep all the technicalities aside. Okay, I'm just projecting an example of that movie just for communication skills. अगर आपके पास वो चार्म है, एक जो पर्सन है जो मे बी 1 महीने के में मरने वाला है, शायद वो 10 साल जिंदा रह सके. That is what, that is your way of communicating with the people. That is how the way you understand. Okay, and it will help you. You will be the best doctor, you will be the well-known doctor, you will be the well-known marketer, or you will be the well-known personality. Okay, and this comes your almost the gist of our session.
अभी मैंने यहाँ पे लिखा है U plus career is equal to yes. Now what is this? आप लास्ट 45 मिनट से मुझे सुन रहे हो, ठीक है? एक सर्कल में मैंने आपको डाल दिया है, दैट इज यू, whoever is attending this session. ओके, प्लस मैंने ऐड कर दिया है करियर, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर, और मैंने आंसर दिया है यस. अभी आप बोलोगे मैम इसका आंसर नो भी आ सकता है. ओके, ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है, बट यू नो आई एम एन पॉजिटिव पर्सन एंड आई लुक एट माय अप्रोच ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, नो आ सकता है, देयर इज नो डाउट, बट देन आई वांट टू मेक इट यस. और अगर मुझे यस करना है तो मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा इन ऑल द वेज, ओके, इन ऑल पॉसिबल वेज, बट मुझे अपना आंसर यस ही चाहिए. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट एन यू कैन कॉल मैम ये जिद है क्या, दिस इज नॉट अ, अगर ये जिद भी है दिस इज अ पॉजिटिव, बिकॉज मुझे अपना करियर देखना है. आई मीन टू से इफ यू आर एट द एज ऑफ, अगर 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आप 14 या 15 इयर्स के हो, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो आपका एज ग्रुप 17 से 18 के बीच है. सो आइडियली आप 14 से लेके 18 तक वाले बच्चे हो, ठीक है? आपके पास नेक्स्ट 10 इयर्स है टू डिजाइन योर करियर. ओके, अभी आपने करियर जो सर्कल देखा है उसमें आप अगर अभी आप हो 18 इयर्स के प्लस 10, यानी एट द एज ऑफ 28 यू वांट टू सी योरसेल्फ एज सक्सेसफुल, एंड इट इज वेरी राइट, इनफैक्ट होना ही चाहिए. आप मुझे बोलो अगर मैं आंसर यहाँ पे नो डाल दूं, या इसका मतलब आप शायद 28 में करियर बनाओगे, या 30 में बनाओगे, या 35 में बनाओगे, या 36 में बनाओगे, या बनाओगे ही नहीं. लाइफ लॉन्ग ऐसे ही आप डिलेमा में होगे. कौन सा ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है, 28 में सेटल्ड, ओके, even if you don't mind, you're so much settled that at the age of 35 you have a luxurious apartment, you have an BMW with you, you have a good life. सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है ना. अदरवाइज 35 में करियर सेटल होगा, 40 में करियर सेटल होगा, फिर उसके बारे में आगे सोचोगे. नो वन वांट्स टू हैव दैट सेकंड एग्जांपल. सो ऑलवेज मेक श्योर कितनी भी डिफिकल्टीज आए आपके लाइफ में रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको बहुत you are into, you nutshell right now you are into a very small society. आपको लाइफ में बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है. so when you go through that phase बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, जैसे मे बी वो स्पीड ब्रेकर्स हो सकते हैं, या तो वो मे बी इट कैन बी अ बिग होल. ओके, बट देन इन सब से हमें ऊपर आना है. यू शुड नो हाउ टू फाइट विथ योर लाइफ. ओके, और अगर आपने वो करना सीख लिया, even at the age of 80 you will be, you know, the best human being. Okay, why? Because you are not afraid of anything in your life. आप बोलोगे मैम ये बोलना बहुत इजी होता है, करना भी इजी होता है. you see the moment you start with a negative thought, कैसे करें, उससे बेटर अगर आप बोलो हम करेंगे, you know, that makes an impact. okay, like for example बहुत फर्क होता है आपकी सोच. I said mind is the biggest distraction. अगर आप स्टार्ट ही नेगेटिव से करते हो तो उसका आउटकम आप ही सोच लो क्या होगा. बट इफ यू आर वेरी पॉजिटिव विथ ऑल द थिंग्स, सिर्फ आप बोलोगे मैम मैं बहुत पॉजिटिव, मुझे डॉक्टर बनना ही है, बट आप ना मेहनत कर रहे हो, ना एजुकेशन ले रहे हो, ना टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, ना आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, देन इट इज डिफिकल्ट. यू नीड टू हैव एन इक्वल बैलेंस लाइक दिस. दिस इज अल्टीमेटली द लास्ट थिंग ऑफ आवर प्रेजेंटेशन. अगर आपको आपका करियर मैनेज करना है, देखिए मैंने 4 बॉक्स सर्कल्स बनाए हैं. जैसे टीम वर्क 25%, प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब ये प्रॉब्लम तो हर एक के लाइफ में है. ओके, हमें प्रॉब्लम से फाइट करना आना चाहिए. सी आई एम नॉट टेलिंग प्रॉब्लम एवरीवन इज फ्री ऑफ प्रॉब्लम, और एवरीवन विल हैव बेड ऑफ रोजेस ओनली, और एवरीवन विल हैव ओनली थॉर्न्स. इट्स नॉट लाइक दैट. आपके प्रॉब्लम्स है, रहेंगे, इट्स लाइक इट्स नॉट गोइंग टू एंड, लेकिन आपको उसके साथ एक वर्ड डाल देना है सॉल्विंग, है ना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड यू विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ इट. प्रोफेशनल एथिक्स, आपको प्रोफेशनलिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली लाना पड़ेगा. जैसे लाइक राइट नाउ आई विल थैंक ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज यू हैव शोन रियली अ वेरी ग्रेट प्रोफेशनल एटीट्यूड. हमने बताया था कि वीडियोस ऑफ करो, आपने वीडियोस ऑफ रखे हैं. म्यूट पे जाओ, आपने म्यूट किया है. इट मीन्स यू आर रियली अ वेल versed professional people who can really have a lot of things in your life. Okay, and at the end 25% comes as IT. See, we are into this lockdown phase. You know that India is fighting COVID-19 since March. Okay,
हमने बहुत बहुत पेशेंस दिखाए हैं, बट यू नो स्टिल वी आर लर्निंग. सेशंस हो रहे हैं, मे बी आपके क्लासेस हो रहे होंगे, आप आपके फैमिली मेंबर्स से बात करते होंगे, उनको देखते होंगे. इट इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ IT. इट मीन अगर आपको सब्जी भी चाहिए, आपका सब्जी वाला जो आपके लोकेलिटी में आके सब्जी बेच रहा था, आज आप वो एंड्रॉइड फोन से आपके ऑर्डर ले रहा है और सब्जी बेच रहा है. It means IT knowledge is or IT field is going to be a very bright field. Okay, आपको you can't tell कि मुझे ये सब नहीं पसंद है या मुझे नहीं अच्छा लगता है. आपको जमाने के साथ चलना पड़ेगा, and you have to change, a change which is for betterment. And ये अगर आपका सर्कल कंप्लीट हो जाता है, it means you are into career management. यानी आपको पता है कि आपके करियर को आपको कैसे हैंडल करना आता है. So that is what career management all about is. Okay, so here what we end with our session. Once again, I thanks all the wonderful audiences for having so much patience